this. And all of them, all I pray for all those who join Sangeeta and Sita. Yes, Sita Wall, good to see you. Ritu, Nanda, Khatun, Roma. Yeah. ये जरा करना, ये adjust करना. I can see everybody. And Chawla ji and Ashok ji, Gupta ji. I think that's Deepa. ठीक है. उधर बंद किया है एसी नहीं चाहते फीलिंग वेरी हॉट इसको बढ़ा दे ऊंची आवाज है मेरी आवाज बहुत उधर का ऊपर let this be here. Okay, everybody can hear me. Welcome. So good to be back where you belong. Amen. Prabhu ki kripa se I came. All this will have to get all the regulators done. Yeah. Somebody will have to come here and do. I can't come with my legs. Yeah. So if somebody has a time, please volunteer to come and just fix his office. थोड़ी regulators है, ये काफी कुछ ये करना है. प्रभु का मंदिर में जिदिल से करते हैं, बरकत है, बहुत मिलेंगे, बहुत. God is always looking for people who build God's kingdom. It just requires once, certain things. Regulators have to be repaired and cleaning. And whoever wants to volunteer also to come once a week and clean up the office, everyone, and give everyone a chance to be blessed. It's an honor to do the Lord's kingdom. We bless each one of you, and I claim for Hashetani Takat. I'm Pratakate, bless Asha ji also, Father Lord. We take authority and bind every power of darkness. I'm Pratakate Prabhu. Let's bow our heads. Dhanyavad dete Prabhu. Just a joy to see all our people. And thank you, Lord. God bless you. Amen. Khatun, welcome. इस वक्त हर शैतानी ताकत जो तेरे काम के खिलाफ, तेरे कलाम के खिलाफ, तेरे वचन के खिलाफ, तेरे रूह के खिलाफ आते हैं प्रभु, उखाड़ देते यीशु मसीह के नाम से, उखाड़ दो प्रभु. ब्लेस करिश में also give a complete healing, great faith in your word to speak your word. And जो आपके जब प्यारे your loving children have joined Father Lord, उनका सारे उनका दिलों का अच्छा जमीन बने ये प्रभु तेरे वचन सुनने में और समझने में और आजाद होने में प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. अभिषेक कीजिए प्रभु आज का वचन को और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से. इट्स नॉट माय वर्ड्स बट योर वर्ड्स दैट विल डिसाइपल पीपल. मेरा लफ्ज विल नॉट गो एनीवेयर, इट विल हिट द रूफ एंड कम डाउन. बट प्रभु का वचन दो-धारी तलवार है. इट विल बेयर फ्रूट. आमेन. इट विल प्रॉस्पर. जहां वो जाएगा वो उन्नति देगा. You know the word of God prospers when you receive it and it will bear fruit. जरूर प्रभु का कलाम बहुत हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहुत फल लेके आएंगे. जहां जहां प्रभु का कलाम जाता है वहां उन्नति आती है. It's my words, it's God's words. क्यों? Can anyone tell me why? Well, because प्रभु का कलाम और वचन और खुदा एक है. In the beginning was the word. The word was with God. The word is God, was God, always will be God. Amen. And प्रभु यहाँ तक कहा है, I've glorified my word above my own name. लहू के ढक तो प्रभु जो आने वाला उनको भी जल्दी से जल्दी विपस्थित में लेके आएगा प्रभु. अभिषेक कीजिए. I thank you Lord that I could come safe and sound. Though my whole family was against me coming here, it's so early. But I pray Father Lord that your grace coming all the way alone. I came alone by rickshaw, my favorite mode of transport. Amen. So I thank you Lord for the grace. Because and a wonderful time with the rickshaw wala. Thank you Lord. I gave him the gospel number le liya Roshan. I will give him. See, Prabhu, the most important thing हम travel करते हैं to, as I always tell you, जहां जहां प्रभु आपको लेके जाता है उस नगर, उस जगह, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां भी है. उस वक्त के लिए आपका धरती का आप you're the light of this world. धरती का उजाला है और दुनिया का नमक. So I was so glad that I came. One of the major reason he was very open and बहुत कुछ उन्होंने बोला कि आपको सुन के मुझे सुकून आ रहा है. I've been waiting for a long time. What's his name? I think Roshan took his name. उसका नाम नंबर ले लिया ना रिक्शा वाले का. No problem. He's some Yadav from UPI. It was the next time I'll join. See how precious that man is. Amen. If I'd come by any other vehicle, I'd have missed that salvation. So it already made my day. Thank you, Lord. Miss that man's salvation. Yeah, God, the most important thing in life is soul. And I had this urgency that I must go. And as soon as I sat, I knew the Lord told me share the gospel. I knew this man was chosen. Thank you.
God made me come all the way by rickshaw, not by any other mode of car or anything, because that man was precious to God. वो रिक्शा वाला बहुत ही अनमोल है प्रभु के सामने, एंड ही वाज देयर डेस्टिन्ड फॉर हेल. बट आज जो मैंने शेयर किया काफी लंबा जर्नी था. He understood much of it, but that's not going to make him a disciple of Christ. As I said, as you keep salvation prayer मुझे मेरे साथ किया, लेकिन उसके बाद it's a starting point. I have to follow up, keep in touch, pray, and उनको lead him into a relationship with the Lord. Amen. प्रभु का साथ एक रिश्ता दिखाना है. तो हम क्या कर रहे हैं आप लोग? वेलकम आशा. Also, we are doing the letters of Paul, Apostle Paul के letters जो अलग-अलग churches को उन्होंने लिखा है, अलग-अलग देशों को. Amen. फिलिपी के देशों को, और thank you for coming and cleaning place. And हमारे बच्चे, they are so good. Thank you Jesus. And Philippians, Corinthians के देश को, Corinthians, Ephesians के देश को उन्होंने, Ephesians का letter. Now this is Thessalonica. एक एशिया माइनर के बाद जहां, नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, जो आप लोग गाजा, वी हियरिंग ऑफ इजराइल, गाजा वॉर, यही के आसपास है ये सब. ऑल दिस, all of them have been given the gospel. Mighty work of God has been done there, and but it's not forever. Amen. प्रभु ने ऑलरेडी काम किया है, but there is always एक lifelong enemy हमारा जो शैतान. So it's not one saved, always saved. See, all these places जो अभी युद्ध हो रहा है, सब कुछ वहां हमारे अपोस्टल पॉल वहां जाके इन लोग ने सब वहां गॉस्पेल स्थापित किए थे, चर्चेस स्थापित किए थे, कितने लोगों को बचे थे, but still not everybody saved over there. With time, with centuries, probably then after the gospel, they didn't take it on. शैतान आता है, they watered down the version, और उसको धर्म बनाया, और दूसरे religions की दादागिरी वहां आ गए. Amen. ये सब ये शैतान की बहुत ही पुरानी चालाकी है. It's not like once you share the gospel, that's enough. It's a lifetime of prayer, keeping in touch, inconveniencing your life. Amen. Surrendering your life. Welcome, Nanda. Nanda Taiye. Thank you, Jesus. Dhanyavad Ishu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So good to see you. Oh, our dear old ones, precious. So, Thessalonica. अभी ये काफी letters, you know, as I'm teaching these letters, मैं खुद सीख रही हूँ. मैं खुद काफी कुछ सीख रही हूँ. So many things I learned, you know. Apostle Paul, the way he, कितना मोहब्बत, such a deep, what a man he was. कितने गंभीरता, कितने डेप्थ से, कितनी जान हथेली पे डाल के उन्होंने खून पसीना और आंसुओं से वहां हर शहर में और हर उन्होंने चर्च शुरू किया. And then he used to come back and see their growth and see to it that, because he had this एक जुनून था that they had to be disciples. ये नहीं कि इस बार gospel छोड़ दिया, दे दिया, चर्च भी स्थापित किया, उसका काम खत्म. Look at the commitment, look at the श्रद्धा, look at the devotion, look at उनका जुनून देखो. And because of that we are all here. Amen. Apostle Paul, Apostle Thomas, जो पहले जो जिस जगह से मैं आई हूँ, आई एम फ्रॉम केरला बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मॉगवी. मैं मेरे माँ बाप वर सीरियन क्रिश्चियन मल्लूस, केरला से आए थे. देयर वर माइग्रेंट्स फ्रॉम केरला कमिंग हियर फॉर जॉब. बट पहले जो ये सोच के समझ का जो काफी मिसनोमर्स है हमारे इंडिया में कि ब्रिटिश कॉलोनी ने, ब्रिटिश ने यहाँ गॉस्पेल लेके आया, तो दैट्स रॉन्ग. जिस सेंचुरी में प्रभु यीशु जन्म हुए थे एंड ही वाज रेजरेक्टेड, AD, the very first century, that same time, a few years later, Saint Thomas, उनका शिष्य ने केरला में आया, वहां गॉस्पेल दिया, और काफी कुछ वहां उन लोग ने जूस आ गया, और काफी कुछ लोग प्रभु में, यहाँ तक कि वहां की राजा, my dad used to tell me, वहां का राजा was so benevolent and open. Yeah, God had prepared the hearts. He welcomed him and the Jews, and that's why we were saved, my forefathers. So Keralites think we are direct descendants from the Jews. So we were not religious or Hindu converts. That doesn't matter. So just because हम direct converts है, तो काफी Syrian Christian community सोचते हैं कि हमारे direct entry हुआ है. ऐसी बात नहीं है. That's all. See, everything in Christ. Now Syrian, we are called Marthomas. We are direct descendants from Saint Thomas. Okay. So that doesn't mean हमको direct access है वहाँ. You know, मेरे मॉम के साथ काफी हमारी arguments होती, but she came saved in the end. Everyone, in Christ, nothing can be taken for granted. प्रभु यीशु में चाहे आप बिशप की या बहुत बड़े
बिशप्स एंड प्रीस्ट एंड बहुत बड़े डीकन्स, बहुत बड़े स्थानित क्रिश्चियन लोगों के आपके रिश्तेदार हैं, तो डायरेक्ट कोई सीट नहीं है। मैं खुद मेरे बच्चों को बोलती हूँ, जस्ट बिकॉज आपके माँ बाप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आपको कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। यू हैव टू, देयर इज नो वीआईपी सीट्स ओवर देयर। जीसस हैज नो ग्रैंड चिल्ड्रन, ही हैज ओनली चिल्ड्रन। आमेन। तो हर एक, भले आपका कोई एज हो, देश हो, वहां है, और कोई फैमिली स्टेटस, एजुकेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्रभु को। वी आर ऑल, ही इज अ ग्रेट स्टेबलाइजर, ही इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। चाहे कोई भी कास्ट कम्युनिटी के बिलोंग हो, इट डजंट मैटर। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू हैव एन ओन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकारना है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, ग्लोरी टू ग्लोरी, आप उनके, you have to build your relationship with the Lord. You have to build it. So there's nothing to be taken for granted. Nothing, absolutely. You're as good as today. Amen. That's why Apostle says, read har bar, even in book of Prakashit Vakt mein, or have letters, Apostle Paul ne kaha, those who overcome till the end. Amen. Overcomers till the end. It doesn't matter how you start. Amen. What matters is how you finish. Isliye the first shall be the last shall be the first. So it doesn't matter how you start. बहुत सारे लोग, this is coming to me very strongly. You can't rest on past laurels, glory. मैंने कितना काम प्रभु में किया, पास्टर पुनी कितना काम टीचिंग किया, ये किया, और that doesn't mean I sit back and take a rest and मैं बहुत मेहनत किया, अब मैं ऐश कर रहा हूँ, I'm already saved. No, you're as good as today. So God keeps you on your toes, and that's the way it should be. Says that is why वो ब्यूटीफुल पैराबल में कहूं ने, जब लास्ट विनियर्ड वर्कर्स को सेम इक्विवेलेंट मिला जैसे फर्स्ट, जो सुबह 7 बजे आए थे, और जो फिर 9 बजे, और फिर 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, 4 बार उस बंदे ने, उस वर्कर्स, उनके काम करने वाले आए थे, उन्होंने खुद दिए थे, लेकिन जो लास्ट वाले भी, उनको इक्वल सैलरी मिले, रेम्यूनरेशन मिले जो पहले वाले। तभी ये, इट इज अ ग्रेट ट्रूथ बिहाइंड इट. So the first shall be the last shall be the first. So each one has to look out for their own relationships. Now we can never take anything for granted. Now at the same time, it doesn't mean कि हम गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां करेंगे, गिरेंगे, कमियां हैं, सब कुछ है. We are all human, but that's not the point. But as long as we are focused and we come back on track, और हमारी गाड़ी चल रही है, momentum. God wants momentum. It should go from strength to strength, glory to glory, to the next level. Amen. इसलिए अगर हमारी रिलेशनशिप में उनके साथ कोई मोमेंटम नहीं है, that means you've gone lukewarm. Amen. Lukewarm. Momentum is what God's looking for. And we are all works in progress. Yesterday I'm better than today, and today I'm better than yesterday, and tomorrow मैं आज, कल से आज बेहतर होगा. So it's a progressive walk, like my healing. I had this fracture, maybe a surgery 4 months ago. So I noticed so many analogy to our own life. How it is a progressive healing. In Christ, everything is progressive. कोई झटके में कोई डिसाइपल नहीं बनता है, कोई झटके में कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई झटके के कोई ये नहीं होता है, कोई झटके में कोई कुछ नहीं होता है. And most healings are also progressive. There may be, Pastor Paramjit, the gifted people, when they pray कि झटके में कैंसर भी हील हो जाता है, वो है, वो प्रभु, I've seen that too, वो भी होता है, 100% होता है, but that's not the end of the story. वो प्रभु ने उनको दया करके उनको हीलिंग दिया, बिकॉज वो इतना महान कार्य, वो अपने बच्चे को वो हीलिंग देखता और हीलिंग देखता. बट जस्ट बिकॉज ही हील्ड, दैट डजंट मीन उनका सैल्वेशन भी एक झटके में हुआ. नो, हीलिंग एक झटके में कभी होता है, लेकिन सैल्वेशन इज अ प्रोग्रेसिव जर्नी एंड ऑल्सो कलेक्टिव जर्नी. ये नहीं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक बाइबल खरीद के घर में भी बैठ के हम सेव्ड होते. नो, प्रभु इज, यू आर बॉर्न. हम इस प्रभु ने आपको सेव किया है, हमको दाद दिया है, नंबर 1 उनकी शरीर से जुड़ने के लिए. The body of Christ is number 1. We are saved collectively and we will be raptured collectively. Nobody is an what you call lone ranger in Christ. Prabhu कहता है, and a man who isolates himself seeks his own desire and wreaks all against wise judgment. शैतान चाहता है कि हम अकेले रहे, क्योंकि अकेले में कोई interaction no हो, I'm alone, I don't get on with people. Like that's not God's plan for us.
अगर हम हर कोई पर्वत के ऊपर जैसे साधु योगी लोग तपस करते हैं यीशु के सामने, तो हम लोग तो कलीसिया की क्या जरूरत थी? प्रभु ने ये अभी जो पढ़ रहे हैं अपोस्टल पॉल वगैरह, उनकी जान हथेली कर कर, उनकी खून पसीना और आंसुओं से इतनी ब्यूटीफुल सीधा श्रद्धा, वो डिवोशन, उनका जुनून, हर शहर में जाके उन्होंने कलीसिया बसे, वापस आ गए, चेकिंग ऑन देम, और एक एक करके हर लेटर के ये डिसाइपलिंग लेटर्स है, बिकॉज उनके नेचर में, उनके कैरेक्टर में चेंज होना है और वो मसीह जैसा बनना है. व्हाट इज द हाईएस्ट intent of God for our lives? Number one, to be more Christ-like, and secondly, to save souls. Amen. Everything else is immaterial, and part of the journey is not the main thing, right? He blesses us, he heals us, वो हमको सब कुछ देगा. प्रभु ये भी कहा कि मेरे राज्य को ढूंढो और सब कुछ आपका, रोटी, कपड़ा, मकान, करोड़ बंगले पीछे पीछे आएंगे. But the momentum journey, you keep going ahead, they follow you. And he also said that, या प्रभु यीशु खुद के his own words, there's nobody, कोई भी है नहीं जो अपनी माता पिता, भाई बहन, फ्रेंड, बेटी बेटा को अपने बलिदान, सैक्रिफाइस किया, खो दिया है, given up, not that there nothing, no harm to them, लेकिन you made a choice और अपने घर और प्रॉपर्टी भी दे दिया, जो 100 गुना तुमको यही दुनिया में लेंगे, with persecution plus in the life, eternal life. We made it so clear. Manifesto is so clear. But we have no confusion. हम खुद confused है क्योंकि हम खुद complex है. We try. God's word is so simple. You know, if you are truly looking for God's word, of course we need teachers. That's fine. We need them. But we are just pointers to His word. I cannot teach you anything from my own intellect. जो प्रभु ने दिया है, वो आपको, I'm just gathering you all together as a flock and teaching you all and trying to make it as simple, जितना आसान है. But प्रभु ने already manifesto clear. I can't add to it or subtract to it or edit it. Sometime back I heard the voice of God. They edit my word. I heard when the Lord speaks to me, it's a scary moment. वो editing करता है मेरे message को. This I heard the Lord speak. This Jesus words. Okay. काफी कुछ man pleasing के लिए करते हैं. You'll see it also. वो भी don't believe me. जो मैं बोल रही हूँ, don't believe me anything. मैं कल की, हम gone tomorrow. But everything that I speak correlate to the word of God. अगर यहाँ लिखा है, God found it important enough. It's for you. And just reading out and revealing what God reveals to me, I cannot add to it, not subtract to it, nor edit it. God says, cursed is the man who does that. काफी कुछ बदल रहा है इस दुनिया में. Governments में भी काफी change हो गया है. And I was really praying, thank you Lord, for a strong opposition. I never pray for any party. People think that I pray. This is my daily prayer. I pray for the PM and his cabinet because God says, pray for the authorities that rule over you and that they have law, that you have godly, peaceful lives. Obey the word. Don't obey all the charcha going on here and there, manifestos coming here and there. ये party के लिए करो, ये party के लिए प्रार्थना करो, वो party नाश हो जाए, ये party. No, that's not what the word of God says. I'm feeling the Holy Spirit. Prabhu कहता है, pray for the people who rule over you. Pray for those who people are persecuted. Pray for His government to come. Not this party thought. God knows what He is doing. हमको उनको कोई भी हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है. हमको हमारी ओपिनियंस, हमारी मैनिपुलेशंस या हमारी नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है. He is all knowing, all seeing, all pervasive God. वो सिंहासन पे है, हमेशा सिंहासन पे रहेगा. Amen. जो प्रभु का वचन का है वो ही करो. Pray that God's government comes. I pray that God put in my non-corrupt government, hidden things be brought to light. And I've got this all these fundamentals because my dad had put to me as a child. He spoke to me several things that and also praying for the army. हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करो. वो है तो हम है. That they take care of them. और उनके कोई दिक्कत ना हो, उनकी परिवार सुरक्षित सलामत हो. These are my 3 fundamentals in my prayer. And सारे गरीब को और best of health infrastructure, best of education infrastructure, और सबको खुद का घर मिले. Everyone, I want everyone to have their own homes and हमारे भारत, I mean, I'm deeply patriotic from childhood. Okay, I love my nation. Okay, and that's nothing is going to change that.
चाहे कोई गवर्नमेंट आए ये नहीं. एंड इफ यू ट्रूली लव माय गवर्नमेंट इज, आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं कहता कि ये टैक्सेस कम हो, ये हो, दैट माय गॉड डजंट टीच मी दैट. ओके, माय वर्ड डजंट टीच मी दैट. When you praying that God's government come there and non-corruption aye, so he knows this is the largest democracy in the whole world. It's not easy to balance the budget ki sabke liye perfect bane har tax. No. Okay, you pray what the Lord is teaching. We don't need to teach God his job. We just pray. Prabhu, tera rajya aaye, tera party aaye, when who you want, and he knows who's on the throne, because and you have to pray daily for your government. And whatever changes हमको देखना है गवर्नमेंट में वगैरह, it will come through the power of your prayer. So follow the manifesto what God has said. चाहे कुछ भी इधर से हो उधर से हो. मुझे बहुत सारी I'm a member of so many WhatsApp groups. दूसरे चर्चेस के आते ऐसे प्रे करो, ऐसे प्रे करो. I'll show you. And this government come, that government come. I told them, तुम लोग wasting your time यार. तुम लोग बाइबल खोल के पढ़ो क्या लिखा है. Follow the word. How many people really follow the word? How many people really follow the word? I feel it's so much नाम का वास्ते Christians. If you have Jesus living अपने रूह के अंदर, you will know what he wants. Amen. You will know. Yeah, ऊपर से just बाहर की ये चाहिए वो चाहिए. Anyway, God is great. The hidden things will be brought to light. Non-corrupt government, decent government, the best integrity in the government. Our cabinet, आप तेरी तरफ से, and let the wind blow. तेरी हवा बहुत तेजी से चलने दो प्रभु. और सब कुछ उखाड़ दो जो आपसे नहीं है. हमारे पीएम को प्रभु लंबी उम्र दे दिए, उनको विजडम दीजिए. Above all, reveal Christ to him. और हम प्रार्थना करते सारे कैबिनेट के ऊपर, जहां जहां परसिक्यूशन है प्रभु, टेक केयर ऑफ देम, लेट द हिडन थिंग्स ब्रॉट टू लाइट. और परसिक्यूशन बंद कर दो. यू हैव मेड, you have you given us actually a perfect setup now. So whatever that, so that whatever the government had failed to take notice or the ear to the ground, now things will change. I pray, Father Lord, because you are perfect, and whatever you do is perfect. We don't try to dissect you. We don't try to tell you to do your job. We worship you. You're on the throne, Lord, and you will handle persecution. And because we take, and let the church come unitedly and pray for the persecution. And when we pray, mighty things happen. क्योंकि जब भी persecution हो रहे थे, Acts of the Apostles प्रेरितों की किताब में जब भी शिष्यों के साथ हो रहे थे, तो कलीसिया मिलकर फास्टिंग एंड प्रे कर रहे थे. उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, उन्होंने कोई मिलिटेंसी और एग्रेसिव नहीं हुआ. उन्होंने यहां तक कि जब चांस भी मिले थे, वो उन्होंने वहां से दौड़ा नहीं. They moved in the mighty power of the Holy Spirit. And when the Lord says in this life you will have persecution, you can't escape that. अगर आपकी जिंदगी में कोई persecution है ही नहीं at any time, then you must question your walk कि मैं कहाँ compromise कर रही हूँ. कहीं compromise कर रही हूँ. Okay, we come back. तो टेस्लोनिका एक बहुत ही सुंदर देश है, वहां गॉस्पेल दिया है. And Paul is pretty good with them. They're growing very well, and he's happy with them. So he's teaching them. Again, these are the discipling letters which should be taught and imbibed in every church, because the Lord says only disciples will go to heaven. And this also comes to me every time. God is the way that leads to destruction. बहुत चौड़ा है जो रास्ता जो नाश सर्वनाश के लिए जाएगा. बहुत सारे लोग उस पे होगा, और बहुत ही सकरा है वो रास्ता जो हेवन में होगा. See, this is the manifesto we have to keep. ये प्रभु ने कहा, जो प्रभु ने कहा है वो पत्थर की लकीर है. दुनिया इधर की उधर हो जाएगा, लेकिन that's not going to change, right? So we have to make every effort कि हम वो सकरा रास्ता पकड़े. And that's not going to be easy, right? प्रभु के शिष्य बनना आसान काम नहीं है, राइट? हमको अपने आप को मना करना है, हमारी ओल्ड नेचर को सरेंडर करना है, प्रभु को खुश करना है. हर मोड़ पे, हर डिसीजन में, हर चॉइस में हमको ये क्वेश्चन करना है, व्हाट विल द लॉर्ड डू? प्रभु के सामने क्या सही है वो करना है. प्रभु के सामने क्या सही है करने के लिए हमारे मांस को रोज मारना है. Amen? Crucify the flesh, pick up the cross, take the word and follow you. It's a progressive, evolutionary walk with the Lord. Amen? So, see his love for the devil. Turn with me to chapter 1. I'm going chapter by chapter and verse by verse so that you get the sense that there will be nothing missed, because Apostle Paul ne piche kaha, I come to teach you the whole word of God, the complete word of God. ये नहीं कि छोटे छोटे नमस्ते नमस्ते करके. Good to see all of you. Come. Okay. Good to see you. That's come. Read from 1 Thessalonians chapter 2 onwards.
Thank you, Lord. Thank you. Come, Tara. Yes. How much? How? He gives thanks. सबके लिए Thessalonic church के लिए सबके लिए वो thanks दे रहा है, बहुत खुश है क्योंकि they're growing very well. Amen. Yeah. Yeah. पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे. Amen. We are giving thanks. वो रोज हर एक जन के लिए he thanks for them. This I believe after Christ is the greatest man born on earth. बार बार वापस दे रहा है. Keep thinking of him sometimes. What a man he was. Man, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी था, कोई सुविधा नहीं थी. मर मर के उन्होंने गॉस्पेल दिए, लेकिन मर मर के दिए. आज हम इस इसी कंफर्ट में हैं, राइट? और आज तक बाइबल इज द लार्जेस्ट सेलिंग बुक इन द होल वर्ल्ड, मैन, एंड विल रिमेन टिल द एंड ऑफ टाइम. रिकॉलिंग फिफ्थ ऑनवर्ड्स. क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, बड़े सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे. Amen. तो प्रभु मैंने बार बार बोल रहा है कि उस फिर सामर्थ से विद साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स, और वो रिसीव करके उन्होंने जिंदगी में बदलाव आ गया था. ओनली द होली स्पिरिट कैन चेंज यू, और कोई, यू कैन नेवर चेंज ऑन योर ओन स्ट्रेंथ. मैं अपनी शक्ति से कोई बदला नहीं कर सकता. ना मैं बदल सकती हूँ, ना कोई इंसान बदल सकता, लेकिन हमारे अंदर वो समर्पित आत्मा है कि मुझे बदलना है. मेरा खुदा सब कुछ है. Give me the grace, Lord. वो होली स्पिरिट देता है. हमारा झूठ बोलना, कपट, मैनिपुलेशन, लालच, एनवी, जलन, जो भी है, whatever that is there, every day you surrender to the Lord. वचन पढ़ के बोलो, जो मैं आज बोलूंगी, जो मैं करूंगी, सबको तुझे महिमा देंगे. जो आपको महिमा देंगे, वो सिचुएशन, वो हालात, वो सिचुएशन आप उखाड़ दो. ओके, आगे पढ़िए. एंड यू, या, और तुम बड़े कलेश और शांति के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे. ये 6 है. Yes. Yeah. Okay. And welcome in spite of much persecution. Persecution, see, every church, every chapter persecution है. और वो बहुत persecution, हालांकि we have opposition now and then. We don't have a huge persecution like the communist country. I think India is the best place to live in the whole world. And I also believe that a mighty man of God said कि भारत अभी is going to be the #1 country in the whole world. It came during a message. बहुत साल पहले 2005 या 6 में पास्टर परमजीत ने प्रोफेसाई किया था सोनी विला में कि एक जमाना आएगा, there will be serpentine queues to come outside embassies for visas for India. वो दिन आ रहा है and will come. I believe the time for India has come now. It will not go all over the world. We won't be second class citizens anymore. Okay? जो आगे पढ़िए. यहाँ तक कि मकिदुनिया और आख्या के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने. Amen. So he's probably उनके इतने persecution के बाद भी इन लोग स्थिर और इतने faithful थे कि उनको देखे सब लोग. वो see, our lives are the greatest testimony. उनकी कमिटमेंट, उनकी कन्विक्शन देखे बाकी सब वो बहुत उत्साहित होते थे. क्योंकि अगर मैं बाइबल पर प्रीच करती हूँ या पढ़ती हूँ, अपने आप को विश्वासी कहती हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी और लाइफस्टाइल बिल्कुल विपरीत है, तो it's better you are not saved. Amen. आगे पढ़िए. क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और आख्या में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं. Amen. इस कमेंडिंग की बोला ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कमिटेड और बहुत फेथफुल चर्च है. God bless this one. This is it. और इनके कमिटमेंट, उनके विश्वास, इतने परसिक्यूशन, वहां की परसिक्यूशन मतलब सीधा कत्ल. Amen. जेल में कत्ल. वो उतनी, बट गॉड्स ग्रेस, बिकॉज इतने प्रभु को इतना प्लीज करे थे कि उनको बहुत कमेंट कर रहा है कि तुम्हारे बारे पूरी आजू बाजू के सारे शहर और देश सुने हैं, और मैं बहुत खुश हूँ. Amen. That's the way we all should be, as long as the gospel is coming out of us. Amen. Is coming out of us. Amen. For they themselves volunteer testimony concerning us, telling us what an entrance and how you have turned. See 9. ये भी धर्म के बैकग्राउंड थे. यहाँ कोई यहूदी नहीं थे. They were Gentiles, like Indians, like you and me. I may not come from that background, but most of you are there. आप पढ़िए 9. क्योंकि वो आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ
और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मूर्तों से, मूर्त से, रिलीजियस पीपल, धर्म के रीति वो और सच्चे परमेश्वर के पास आया। उनकी बहुत प्रोसिक्यूशन था और वो श्रद्धा से और गंभीरता से और फेथफुलनेस से प्रभु के पीछे आ रहे थे। तो अपोस्टल पॉल बहुत खुश थे उनके साथ। आमेन। एंड नाउ यू लुक फॉरवर्ड टू वेट। आगे पढ़िए 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आमीन। आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। Amen. And which is coming upon a day which whom he raised from the dead, Jesus who personally rescues and delivers us out, and from the rock coming upon draws us to himself with all the news. See, they are क्यों इनकी तारीफ क्यों? Why were they growing so well? Because they all lived की ऐसे जिंदगी जी रहे थे waiting मसीहा की। Amen. Like I always said, the right walk। हमको ये यीशु, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कमिंग टू चर्च। हम कलीसिया में आते हैं, वहां जाते हैं, आते हैं, लेकिन नो, इट्स मच बियॉन्ड दैट। आमेन। अपोस्टल पॉल ने कहा काफी लोग क्या है चर्च में, द एनिमीज ऑफ द गॉस्पेल, बेलीज देयर गॉड। हमको सही शिष्य वो है जो गलतियां करते हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन इतना जुनून है प्रभु के लिए और गॉस्पेल के लिए और रुए बचने के लिए कि रोज ऐसे जीते हैं कि वेटिंग फॉर द सन ऑफ गॉड। that is the true way, that is shows your passion। ऐसे जी रहा है कि आज अगर मसीहा आएगा, आज मेरा खुदा आएगा, I am ready to go। Amen। That is a true test of a disciple। Are you ready for the Lord today? If he comes tonight during this message, are you ready? Are your hearts right with him? Amen। क्या आपने सब किया? प्रभु ने आपको किया है? That is a true test। Ask yourself at the end of the day, because ये दुनिया, ये चीजें सब रौनक में लिए 2 दिन का है। ये एक इट्स अ मिराज, एक इल्यूजन है, एक डिल्यूजन है और व्यर्थ की चीज है अगर आप मसीह को आपको सेंट्रल नहीं बनाता है। और शैतान की सबसे बड़ी चालाकी है दुनिया की मोह, और ये सब हमको बहुत अट्रैक्टिव, और हमको मेन थिंग वो है। और हमको क्या है, मसीह को अगर यीशु पे अपनाने के बाद भी थोड़ी बहुत सम प्लेस इन आवर लाइफ, मुंह बोले हम यीशु है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, रोए नहीं बचाता है, लोगों को गॉस्पेल नहीं शेयर करता है। गॉस्पेल शेयर करो, खैर छोड़ो, बोझ ही नहीं है। हाउ कैन यू शेयर द गॉस्पेल व्हेन यू आर नॉट बोर्ड? लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपके परिवार, माँ बाप, भाई बहन और आपके रिश्तेदार बहुत कुछ सालों तक है, कुछ टाइम के बाद अभी तक वो मसीह की तरफ नहीं आए, देयर इज समथिंग dysfunctional or lacking, I would say, in your burden to pray, because our God is faithful। प्रभु कहता है that it is of the Father's good pleasure to give up his kingdom। Amen। वो बहुत ही खुशी से वो प्रार्थना देता है, राइट? लेकिन वो अगर बोझ नहीं है, क्योंकि हम दुनिया में इतने लिपट हुए हैं, ask God to give you that boat and he will give you that boat because he is a faithful God। Amen। आगे पढ़िए। या भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारे पेन देना प्लीज, पेन। तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। Amen। For you yourselves know that are coming कि हर बार मैं उनके पास आता कि बहुत कुछ उन्होंने सहा है। Amen। So we had already suffered, we not really treated, but our God to proclaim। See, कितना दुख तकलीफ से he is giving the gospel and is reminding them। Amen। लेकिन यहाँ आके तुम्हारी ग्रोथ देके मैं दिल को ठंडक पहुंचे, अब तुम है हमारी witness। That should be said of me or whoever teaches everyone, that your lifestyle, of course you're doing good and we can do even better। Encourage all of you that my single most tunnel vision is for me, I live by tunnel vision। all I have to do is make disciples of men, teach them how to save souls, have a burden, pray और प्रभु की शिष्य बने। बाकी सब साइड बिजनेस, बाकी सब बिना पूछे आते हैं। ये अगर समझे कि everything else is addition to your life, you have arrived in life। मैन, क्योंकि धरती और आकाश बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि मुझे पहले ढूंढो, मेरी धार्मिकता ढूंढो, बी फेथफुल इन योर वॉक विद द लॉर्ड, एवरीथिंग विल कम आफ्टर दैट। आमेन। आगे पढ़िए। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते।
जैसे कोई छल से नहीं. एंड ओडिशा द लॉर्ड शोड मी 5 words जो शैतान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया. छल, चमचागिरी, चापलूसी, चतुरता और चालाकी. ये 5 है जो हर एक ह्यूमन नेचर में है एट डिफरेंट लेवल्स एंड मेजर्स एंड सीजन्स. एंड इट केम टू मी ठक ठक ठक. तो ये शैतान की सबसे बड़ी है. और कभी कभी as I've said, अपोस्टल पॉल काफी कुछ फॉल्स टीचर्स के बारे में हर as I taught you, हर चैप्टर में और हर बुक में वार्न किया है. सो अगर आज फॉल्स टीचर्स है, इट्स नथिंग न्यू. आमेन. जब से गॉस्पेल बनी है तब से वो शैतान कलीसिया के अंदर घुस गया है और वाटर डाउन द गॉस्पेल. एंड आई सेड कि फॉल्स टीचर्स 2 टाइप्स आते हैं. एक बहुत ही लीगलिस्टिक है, वो बहुत रीति रिवाजों में फलाने में डे टाइम में सिर ढक के रखना, ये खाना, ये पढ़ना, ये करना, आउटवर्ड वो है. और वो रिजिडिटी में लोग में फंसाते हैं. They may trap you in the shackles of religiosity, and the other is the far end of the far end. The other end is the flip, the lawlessness. वो काफी कुछ आज चल रहा है. When Abu tells me online wherever, lawlessness. वो सिर्फ one saved always saved. You will never lose your salvation. तुम कुछ भी कहो करो, तुम as long as एक बार salvation pray किया, चर्च में आ रहे, outward motions, हार्ट कंडीशन को कोई ग्रोथ नहीं है. अब जितने भी अगर गलत भी करे, there's no condemnation. ये काफी कुछ प्रीच होता है. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. But yeah, they don't teach, they edit my word. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus, who live by His Spirit. Amen. The most key word they omit. Amen. So यहाँ काफी कुछ प्रभु या अपोस्टल पॉल कहता है, हमारा गॉस्पेल कोई छल और सेल्फिश मोटिव से नहीं है और चालाकी से नहीं है. We give you the straight gospel. So it is each one of us has to have the discernment to glean what is from the Lord and what is not from the Lord. ये देखो, हमारी प्रीचिंग कोई डिल्यूजनरी नहीं है और कोई छल और कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है. आगे पढ़िए. पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं. और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, उसको प्रसन्न करते हैं. आमेन. यहाँ कहता है मनुष्य को प्रसन्न करने की कोई गॉस्पेल जो पीछता है वो सही गॉस्पेल नहीं है. राइट. जो खुदा को नॉट माय वर्ड्स, आई एम हियर टू टीच यू व्हाट गॉड हैज रिटन फॉर यू. मनुष्यों को प्लीज करने वाले गॉस्पेल काफी है इस दुनिया में इन दिस लास्ट डेज. जो लाइक बिली ग्रैहम ने क्या कहा, तुम काफी लोग प्रीच कर रहा है कि तुम लोग के चर्च भरे लेकिन हेवन खाली. लेकिन प्रभु की उद्देश्य है कि तुम हेवन भरे और चर्च अगर खाली है, इट डजंट मैटर. इवन इफ देयर, बिकॉज सी द इक्वेशन. हजारों लाखों लोग इजराइल के सरों में उनके इतने हमारा मसीह से हाथ से कितने बड़े बड़े मिरेकल्स और जिंदगी मौत से भी आए लोग. They were following, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ थी कि that lady couldn't get close to him. Amen. That the one with the issue of the blood, धक्का मार के इतनी भीड़ पे रंग करके इतने क्राउड्स थे, तो चलने की दिक्कत थी, वो सब कुछ थी, लेकिन आखिर में कितने शिष्य थे. The equation still remains the same. The God is not coming for the crowds who are after him, for all the miracles पाने के लिए, खाने के लिए. प्रभु ने कई बार रिब्यूक भी किया. I rebuke you, repent. तो तुम लोग सिर्फ रोटी के लिए, फायदे के लिए, miracles के लिए. He said several times, you're following me because of the fish and loaves. All the crowds that followed Christ they were given a chance, were not there at the end. We don't know where they are. God is looking for those that who single out his word for this coming for those 12 disciples among the crowd. Amen. So here he is making it very clear. जो सच्चे दिल को प्रभु को प्यार करता है और कितने भी मुश्किलें में उसके पीछे वो छोड़ना और आगे बढ़ता ही है. सब में मस्कीटोज आता है, दरवाजा बंद करो. But just as you seen, yeah, because हम इंसान को प्लीज नहीं करते हैं. Okay, so 5-6 very important. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबको, it's not my words, प्रभु चाहता है कि हर थिस्सलुनीका की इतने साल पहले उन्होंने लिखा था ताकि हम सबको परखने की स्पिरिट हो. Right? Even when I'm watching anyone's a message, whatever, online,
Be sure that you have the Holy Spirit with you to glean what is good for you, not to judge what is the rest, but just to leave alone what doesn't conform with the word of God. हम कोई भी मिनिस्ट्री या कोई मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड को हम न्याय नहीं करते हैं, बिकॉज काफी कुछ नेगेटिविटी भी आ रहा है. ईच वन स्टैंड्स बिफोर गॉड. लेकिन हमको ये पता करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है और हमको ग्लीन करना है. हमको मतलब ग्लीन करना, जो जब फसल राइट फसल है, तो जब फसल से ग्लीनिंग इज एग्रीकल्चर टर्म, तो अग्रेरियन टर्म, तो जो अच्छा फसल है, जो हेल्दी है, वो किसान वो लेता है, और जो नहीं है उसको छोड़ देता है. जैसे ये द एंटायर वर्ल्ड, द चर्च और ये सब हमें एक फसल है. Many of his references are all agrarian, referring to because it's so exact and so suited to that. आगे पढ़िए. क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी लल्लोपत्तों की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे. परमेश्वर गवाह है. और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना किसी और से. Amen. उनकी श्रद्धा, because integrity. Amen. हम मनुष्यों को, दो ही लव देम सो मच, लेकिन तुमको खुश करने के लिए मैं कभी भी गॉस्पेल नहीं देती. जो मेरे खुदा ने इंटरेस्ट किया है, जहां आपके अंदर बदलाव लेके आएगा, क्योंकि आप शिष्य बनने के लायक होगा और एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे, उसी में मैं प्रीच करेंगे जो मेरे खुदा ने मुझे इंटरेस्ट किया है. आगे पढ़िए. परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई. Amen. It's like a devoted mother taking care of them. जैसे एक बच्चा, देख, कोई भी माँ एक सिंसियर माँ है, अपने बच्चों को खाना नर्चर कर, परवरिश करता है. नर्सिंग मदर्स करता है. नर्सिंग मदर्स में बहुत ही यंग बच्चे हैं, अगर वो बच्चा रोल कोई आँख की तरफ जा रहा है और या गिरने का डर है, तो बच्चा तो व्हाट इज मैंने आँख की तरफ, तो उसको खींच के वापस लेके आता है. सो दैट्स अ नर्सिंग मदर्स जॉब. व्हेन वी आर ऑल pastors leaders have got that nurturing. अब जब कोई जो हमारे भेद गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत विचार है, तो उनको खींच के वापस लेके आना. जब खींचता है तो दर्द होता है. Amen. So it's not easy, but it is for an eternal work. आगे पढ़िए. और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे. Amen. इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए. Amen. He is commending them. हम सिर्फ गॉस्पेल ही देते, लेकिन हमारी जिंदगी भी आपके लिए निछावर करते हैं. That was his श्रद्धा, his devotion for them. 9. क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन का धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो. Amen. Call all hard struggles, brethren, work day and night, ताकि आपके ऊपर बोझ नहीं हो. That's why we need to honor the work, the खून पसीना और आंसुओं से बसा हुआ ये प्रभु का शरीर, प्रभु का दुल्हन. और जो कलीसिया में आता है, the number one thing you need to know is to honor the place where you're coming. वो कोई सोशल क्लब नहीं है, या कोई मीटिंग नहीं है, या कोई ऐसे किटी पार्टी नहीं है, या कोई ऐसे फ्रेंडली मीटिंग नहीं है, या इकट्ठे लोग हैं, या कोई और मीटिंग या लोग इकट्ठे हैं. नो, प्रभु की शरीर, प्रभु का दुल्हन और प्रभु का मेन, उनका लहू वहां है, अनसप है. The greatest sacrifice the world has ever known. उसके अलावा ये disciples की श्रद्धा and their devotion and their precious blood, all of them in a way, they were little Christ. The great work was done by the Messiah, but all the disciples were sacrificed their lives except for John, who was kept back to write the Revelations. Amen. It is horrific if you hear how they were boiled in oil and whipped, hung upside down. It's so morbid, when you think about it. आगे पढ़िए. तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर की कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से. Which verse is it? Yeah. Your witnesses how unworldly, upright and blameless was our behavior towards you believers. क्योंकि हम दुनिया में रहना है और हमारी श्रद्धा देके हमारे पीछे चलो. हमको दुनिया की सिस्टम के उसके फॉलो नहीं करना है. For you know, as a father dealing with his children, that
we used to exhort each one of you, stimulating, encouraging, and charging you. एक एक करके दुख श्रद्धा, that's why last time we said that हम एक एक करके आपको आप प्रभु के सामने आपको प्रेजेंट करना है, amen, ताकि आपको नंदा को प्रेजेंट करना है, आहान को एंड नम्रता को एक एक करके हमने ठेका लिया है. That is why teaching the word, nurturing, encouraging, discipling and correcting, because प्रभु हमसे पूछेंगे कि आपने ये सही तरीके से उनको नर्चर नहीं किया है, the blood will be on our hands. And he's repeating it over and over again. Amen. कि बहुत personally, each one, we are not just a collective body, we are a collective body, but each one stands individually for his or her life. Amen. एक एक करके आपको प्रेजेंट करना है. Amen. To live क्यों? To live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glorious blessedness which true believers will run after. Amen. कि हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जो पवित्र पवित्र लहू और यीशु ने बहाया वो कभी भी not taken it lightly and a life worthy, ताकि दुनिया देखे ये truly हम दुनिया का नमक है और दुनिया का उजाला है. Amen. Our lifestyles, हमारी सोच, हमारी choices, हमारी चुनौती, हमारी priorities, this is the number one thing God and one that people are watching. People at home and people outside. Amen. इसलिए एक preacher ने कहा, very beautifully put, we are the Bible that people read. Amen. आप जहाँ काम करते हो, जहाँ जाते हो, interact करते हो, family में जहाँ भी है, they are watching you silently. आपका choices, आप कैसे behave करते हो, आप कैसे बात करते हो, आपका हर चीज में they are watching and they are taking inspiration or noting things. Amen. आगे पढ़िए. जैसा तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते हैं और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है. Amen. हम सबकी चाल चलन ऐसी हो कि वो योग्य हो, वो मसीह की प्रभु के रास्ते. That is the number one or central to our walk with the Lord. Amen. हमारी चाल चलन, हमारी लाइफ ये नहीं कि काफी कुछ हम बाइबल कहते हैं, मसीह का नाम लेते हैं, मसीह बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं नाम के वास्ते ऊपर से, लेकिन हमारी जिंदगी अपनी मनमानी से जी रहे हैं. राइट. दैट्स नंबर वन. हर लेटर में, हर देश में, हर चैप्टर में the same things ही वही चीज वो बार बार अपोस्टल एग्जॉर्ट कर रहा है, रिपीट कर रहा है और एस्टैब्लिश कर रहा है, बिकॉज इट इज सो वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर द लॉर्ड. मैन आगे पढ़िए. इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर जो सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते वो प्रभावशाली है. Amen. अभी what I always say, man, अपोस्टल पॉल 2000 साल पहले क्या जब हमने प्रचार किया, आपने ये नहीं ट्रीट किया कि अपोस्टल पॉल का वर्ड है या पास्टर मोनी का वर्ड है, लेकिन ये प्रभु का खुद का वर्ड. यू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड इज रियली लुकिंग, ही इज क्रेविंग and looking for those who honor his word. Amen. He said it takes Isaiah 68 में लिखा है, he takes pleasure in those who tremble at his word. वो बहुत खुशी लेता है उस बालक के, उस शिष्य को जो उनसे वचन से कांपता है. कांपना. That doesn't mean हमको we go to rigors or any kind of rigor. Not literal कांपना, but वो reverence. The Lord takes pleasure with those tremble at his word. And in these last days, मैंने देखा there's a universal, a cosmic kind of एक rebellion against God's word. प्रभु के वचन को कोई मोह नहीं देता. कोई इसी the way they handle persecution, the way they handle everything in the church, outside. I mean, so many things. When there are different groups that I take, and I keep quoting God's scriptures because my family groups extended are, God bless all of them, they are extended family. लेकिन प्रभु का वचन में ज्यादा कोई ये नहीं देता है, अपने दिमाग से काम लेता है. But that's not true. He says, जो मैंने प्रीच किया, इसलिए प्रभु आपके साथ बहुत खुश है, क्योंकि you treated it as a word of God. And all of you are treating it as a word of God and not my word. Amen. That's your greatest thing before God. प्रभु जो कहता है, जो उनकी word, उनके वचन को lightly नहीं लेते हैं, your journey truly begins of the intimacy with the Lord then. Amen. It is not man's word. And how many times he's telling you that? आगे. इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर के उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है,
क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। Amen. Because it is assemblies of God. तो बहुत सारे persecution हो रहा है, but ये थेसलोनिका का चर्च सिद्ध है और steady है, steadfast है और बहुत ही उनका foundation बहुत deep है. Why? Because they honored God's word. Amen. He said honor God's word. जो वचन सिखा रहे थे उन्होंने प्रभु की तरफ से माना, ये नहीं कि ओ इट इज अपोस्टल पॉल टीचिंग या इंसान का वर्ड्स. सी द ग्रेटेस्ट फॉल यू कैन मेक इज नॉट ऑनरिंग गॉड्स वर्ड. अगर प्रभु का वचन का कोई आपको ऑनर नहीं है, देन एवरीथिंग इन योर वॉक विल बी अफेक्टेड बाय दैट. आपका वॉक वचन, आपका चाल चलन, वो हर चीज वो गलत रास्ते पे जाएगा और गलत डायरेक्शन में जाएगा. When you don't honor God's word. Now, honoring God's word is not easy. That ये मैनिफेस्टो है हमारे सामने. It's not easy, but प्रभु की कृपा से, प्रभु जैसे तुम बोल रहा है किसी को माफ करो, मेरे अंदर कोई किसी के लिए जलन नहीं होनी चाहिए, पास्टर्स की सुननी चाहिए, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले ये काम करने उनकी सलाह लेनी चाहिए. Not because we are great, but because we sit on the office of the Holy Spirit. Amen. Salah. And we make mistakes. That's okay. All of us make mistakes. I make mistakes. But I know there's a manifesto for me. Love your enemies. Do good to those who hate you. अपनी एक दूसरे के प्रेम रखना, दूसरों को गॉस्पेल शेयर रखना. They are not easy things. वो आसान काम नहीं है. हमको फ्लैश को रोज हमारी शरीर को रोज क्रूस पे जाके हमको नेल करना है प्रभु के वचन से. रोज हमारे अंदर बदलाव लेके आना. As we gently walk into the great destiny. Amen. As I always tell you, गलती करने से प्रभु की कोई इश्यू नहीं है प्रभु के साथ, जितना गलती का एहसास नहीं है और गलती का पश्चाताप नहीं करते. गलतियां सब करते हैं. It's a lack of repentance that leads us into a lukewarmness, and lukewarmness goes into destruction. Because the Lord says that I'll screw your mouth. तुम गर्म हो या ठंडा हो, अगर तुम गुनगुना है तो अपने मुंह से मैं तुमको फूंक दूंगा. Amen. He's preparing them for that. आगे पढ़िए. जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वो सब मनुष्यों का विरोध करते. Amen. Amen. देखो उनको इतना परसिक्यूशन था, वो यहूदी लोग कैसे शैतान अंदर काम कर रहा है, अन्य जाति के लोग जो आप लोग हैं, ऑल ऑफ अस, उनको गॉस्पेल देना उन्होंने रोक लिया था, और सो सिवियरली, एंड येट द गॉस्पेल रीच्ड द होल वर्ल्ड. Amen. 16. और वो अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नकुआ भरते रहे और उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा. Amen. अभी देखो ये सब हो रहा है, और अपोस्टल पॉल वहां जाना चाहते थे. कभी कभी इतना बड़ा ग्रेट आदमी अपोस्टल पॉल, प्रभु वो कहीं जाना चाहते थे, वो उनको जाके डिसाइपलशिप करना चाहते थे, उनको मिलना चाहते थे, उनके साथ फेलोशिप करना चाहते, वहां क्रूसेड वहां करना चाहते थे. बट even such a great and a huge and a humongous disciple of God was hindered by Satan. Amen. आगे पढ़िए. You read 18. This is a very crucial verse. आगे पढ़िए. इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रखा. शैतान रोकता है प्रभु का काम. अगर बाइबल में लिखा है the greatest apostle born on earth, he had been a victim of his wiles and guides, how much more हम, जो हम उनके पैरों को धूलों से भी कम है. And all of you, याद रखना, शैतान को हमको कोई फुटेज नहीं लेना है, but we must understand that every time प्रभु की जितना प्रभु का काम करने में रोकने के लिए, ऑब्स्टिकल्स के लिए, हिंड्रेंस के लिए, कभी विद इन विदाउट, शैतान का बहुत बड़ा वो ताकत, क्योंकि दुनिया से उनको कोई परवाह नहीं है, दुनिया उनका ही है. उनका काम है चर्च के अंदर, और इनका जर्नी क्रूसेड कहीं जाने वाले थे, प्रभु का काम को अपोस्टल पॉल का रोका. और अगर 2000 साल पहले बाइबल में लिखा है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इनफ, दैट्स व्हाई अपोस्टल पॉल हर बुक में क्या कहता है, इवन टू न्यू बिलीवर्स, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं, कई बार वो जेल में गया, कई बार वो बीमार थे, कई बार उन्होंने शिपरेक्स दिया, पर्सिक्यूशंस, फैमिन्स, डिस्ट्रेसेस, कई बार, बट ही इज ओपनली सेइंग कि शैतान हमने रोका है. सो दैट्स समथिंग वी शुड गो. अगर आपके जिंदगी में आपके आगे बढ़ने के लिए, आमेन,
आप प्रभु का काम करने के लिए, प्रभु के और इंटिमेसी आने के लिए, चर्च में आने के लिए, दसवांश भेंट देने के लिए, आमेन, प्रभु में ग्रो करने के लिए, प्रभु की बुद्धि में बढ़ने, काम में बढ़ने के लिए, यू कैन बी 100% श्योर हर किसी की डिसाइपल की जिंदगी में शैतान काम करता है। और हमको दिस मैन अपोस्टल पॉल जो 24 घंटे प्रार्थना में थे, इवन उसका भी काम 2 बार वो रोक लिया, कई बार। सो गॉड अलाउज इट टू टीच अस एम्पैथी, एवरीथिंग। हमको सावधान रहना है प्रभु का काम, इसलिए पास्टर्स लीडर्स के लिए रोज प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान उनकी पर्पस, when you pray for Pastor Paramjit or anybody else, who it is Satan that is hindering his purpose. It is, I'm not saying this, the word of God says that, amen. It is Satan that hinders a man of God or a woman of God's purpose, the fullness of his calling, the fullness, कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक का कमजोरी वो जानता है, और वो कमजोरी मैनिपुलेट करके जो भी है, whatever, शैतान रोकता है। Get it into your spirit, शैतान पूरी तरह रोकता है प्रभु का काम के लिए, मगर जो शिष्य फास्टिंग एंड प्रे करता है, श्रद्धा से प्रार्थना करता है, वो शैतानी ताकत टूट जाता है। Long ago I heard 2001, the anointing combined with prayer is the death knell of the enemy. I heard his voice 2001 when ministry just started. अभिषेक जो है और उनके साथ लगातार श्रद्धा प्रार्थना, वो only prayer can defeat the enemy. इसीलिए, and the prayer involves praise, thanksgiving, worship, fasting for seasons, whatever, the entire world. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा घर will be called a house of prayer. Prime intercession is the primary paradigm of the church. हर कोई must intercede. प्रभु के काम के लिए रोकते, पास्टर परमजीत के लिए, now we started the fasting and praying, amen, क्योंकि शैतान रोकता है, amen, शैतान रोकता है उनके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, आप सबके लिए, जो खोए भेड़ है, जो रिबेलियन में है, जो भी है, हर किसी की जिंदगी में शैतान रोकता है, बट जो श्रद्धा से प्रार्थना करता है, वो यू ओवरकम दैट, he is defeated. जहां 2 या 3 इकट्ठे एक बन रहे एक दिल से, वो शैतानी ताकतें रोकता, वो खत्म होता है। So our life has to be constantly a challenge to be in prayer. That is the meaning, pray without ceasing. Pray without ceasing. Matlab, it's not sitting in a corner and just ratifying it. That's a good thing if you do that, but you have to have the spirit of prayer. Your spirit, हमारी आत्मा हमेशा communicate करता है कैसे, जो भी चर्च बढ़ने से या चर्च रुए, स्पेशली न्यू पीपल, नए लोगों को लेके आने के लिए और उनका डिसाइपल्स बनना, तो नंबर 1 वो शैतान रोकता है। Especially शैतान is very happy with the world he's at. He knows, वो जानता है उनका वक्त बहुत कम है, वो हमेशा के लिए नरक जाने वाला है, और वो चाहता है कि कितना कलीसिया से डिसाइपल्स को लेके जाए, वो लेके जाए। आमीन, आगे पढ़िए। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। Amen. हमारी आनंद, he's taking so much joy कि उन लोग तो वो faithful they were, and they were responsive to the word of God. Yeah, and we send, third, इतने सारे afflictions वो तिमोथियस को भेजता है, second chapter, third chapter, then third onwards, कि कोई कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। Amen. कोई भी डगमगा ना जाए, persecution comes, or what is the other word used? कलेशों, क्लेश, कुछ प्रॉब्लम होगा, persecution होगा, financial issues होगा, business में issue होगा, कोई sicknesses होगा, बच्चों की issue होगा, just move forward. Even when we are with you, we warned you that, fourth onwards. क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे, क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे, तो तुमसे कहा करते थे कि हमें कलेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा गया, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा विश्वास व्यर्थ हो गया। Amen. ये परीक्षा करने वाले कौन है? He, Satan has allowed this.
कि बार बार उनको कर रहा है कि शैतान की शिकंजे में नहीं जाओ, क्योंकि एवरीबडी विल गो, आमेन। शैतान हर किसी की जिंदगी में रोकने के लिए करेगा। कभी कभी परसिक्यूशन होगा, कभी पैसे की लालच होगा, कोई बीमारी होगा, whatever it is, but there's a constant pressure and a constant obstacle in your life. वचन पढ़ने की, even at the simpler level, वचन पढ़ने में नींद आती है, कोई दरवाजा ठोकता है, फोन आता है, बच्चे डिस्टर्ब करता है। It's all how you prioritize. Amen. सुबह उठ के, if you make, if I find it difficult because I've got so much of work in the morning, everything is on my head in the morning. The household, everything, nobody takes, I find it very difficult for that, and so I spend late at night. Amen. So, purchase demands, somebody, whoever, whatever, everything, even the carpenters, plumbers, kitchen, everything. But if you prioritize, अगर आप सच्चे से आप जब मैं 3-4 महीने से मैं व्रत हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, as soon as I sit the home, then all the calls will start. I have to make, people call for prayer, people call for this. So, but the point is, all that I do for the Lord and with the Lord is really not important as my quiet time with the Lord. जितना भी मैं प्रभु का काम करूं, अगर मैं इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम दैट इंटिमेसी, वो रिश्ता है, मेरा काम अधूरा है, वो खोखला है, एंड इट कैन कम इनटू रूटीन एंड listlessness which has no much fruit. Amen. तो आप you have to steal time with the Lord. Amen. तो कि learn how to, वो हर किसी को वो जो भी एप्लीकेशन से परेशानी में है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, उत्साहित करो, क्योंकि वो प्रभु ने अलाउ किया वो टेस्ट, ताकि वो पार करके दे विल कम फॉर्थ अ शाइनिंग एग्जांपल्स फॉर द लॉर्ड। हर किसी के जिंदगी में टेस्ट आएगा, ट्रायल्स आएगा, एफ्लिक्शंस आएगा, आमेन। लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है। चाहे तुम रो, यू कैन सिट एट द लॉर्ड्स फीट एंड क्राई, आमेन। बाइबल पढ़ो, यू कैन सी दैट्स ऑल फाइन विद द लॉर्ड, बट जस्ट कीप ऑन एट योर वॉक विद द लॉर्ड। आपको पीछे ना कोई हटे, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, और आप प्रभु का काम में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, आमेन। आमेन। बट तिमोथियस बहुत खुश है, उनको खुश कर लेके आता है, आमेन। बट नाउ 6 and 7, पर अभी तिमोथियस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने गए। इसलिए it's a faithful church, and I believe that all of us are, and will go at a greater level of faithfulness now. Amen. Yeah. 7. Yeah. इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और कलेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। Amen. वो कितने भी तो जितने भी दुख हमने सहा है, कितने भी हमें तुम्हारी ग्रोथ देके, I can empathize with that. Amen. अभी बहुत तकलीफ में इधर आया। Amen. It's not easy. I came by rickshaw and the पूरा परिवार बोल रहा था अभी तक नहीं जाओ, wait for some time। हमको भी फोन किया, what he told me, very funny word came to me, but I won't say it now, I'll tell you later. तो it's okay online, but I said no, amen। ऑनलाइन काफी लोग हमारे फेथफुल जाते हैं, लेकिन ये हमारी महारानी, हमारी महाराज नंदा, लक्ष्मी, all of them, उन लोग issues है, they can't come walking, and I came खास, I told Deepa, उनकी चेहरे मेरे सामने आ रहे थे बार बार, प्रभु बोला उनके लिए, माया देवी, all of them, the rest of them, उनकी चेहरे, because you're precious to God, और खास करके उसी के लिए I came, not because I'm doing a great job, that so many, कितने शैतान रोक रहा है उनकी ग्रोथ के लिए, right? And of course others join, but every soul is precious to God, amen। और वो इसीलिए प्रभु ने मुझे हिम्मत दी अकेले में, तो everybody was against it coming, but I came, God is with me, it's okay, कहीं ना कहीं चलना है, amen। I'll tell you the word later, what I use around them, amen। आगे पढ़िए। तो इतने तो दिस इज स्मॉल थिंग, ये कुछ भी नहीं है। जो अपोस्टल पॉल ने इतनी सफरिंग की, लेकिन वो इट्स सो हैप्पी दैट इतना तकलीफ से, आई नो इट मेड माय डे, दैट सब लोग आए, आमेन। क्योंकि जो मैं सिखा रही हूँ मेरा लफ्ज नहीं है, ये प्रभु का अनमोल वर्ड है, जो सबकी जिंदगी में वो खुद प्रभु आके बसाएगा, सब कुछ ट्रांसफॉर्म करेगा। ये वर्ड है जो खुद खुदा है, आपको खुदा देने के लिए आया है। And no trouble in the whole world is worth even can ever stop, is not nothing in the whole world, दुनिया की कुछ भी चीज नहीं हो जितना अनमोल है प्रभु का वचन, amen। Nothing is worth stopping back, amen। Thank you, Jesus. Thank you, Lord। God bless each one of you for coming here, and I believe for the growth, share with new people and grow in the Lord।
आइए and again. हाँ, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। Amen. So I give thanks for each one of you. जो आए हैं दूसरों के लिए क्या आए हैं, वचन बड़े और बड़े. You made my life, जो एक since someone who truly loves the Lord and His word, जब प्रचार, when you see the growth in that person, everything एक ठंडक आ जाता है, एक आपके दुख तकलीफ में एक मलम आ जाता है. That is the power of God's word. God bless each one of you. And we continue to pray. Yeah. कितना, जैसा I pray, I don't pray as much as Paul, and I should pray, but your daily in our prayers, हम सबको प्रार्थना करना है, because again, coming down to prayer, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, फर्स्ट पास्टर्स के लिए और उनके परिवार के लिए, दूसरों के लिए, is vital for our growth. शैतान वो, मैंने कहीं पढ़ा है, शैतान उससे डरता है. आप कितने भी आप प्रचार करो, ये करो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनको ज्यादा डर नहीं है, बट ही फियर्स अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट ऑन हिज नीज. जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को वो डरता है, क्योंकि वो डायरेक्ट लाइन कॉन्टैक्ट में, वहां वो इंटरफियर नहीं कर सकता है, वो उसका पावर खत्म. प्रेयरफुल क्रिश्चियन, spend more time in prayer in the last days. Stop wasting your time in Netflix, other things, everything, because time is passing by. व्यर्थ की चीजों के पीछे नहीं भागो. The only thing worth it, you just, amen. See, and we continue to pray with most intense earnest night and day, that we may see you face to face, and then whatever good may be imperfect and lacking in your faith. Amen. प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से जो आपकी कमी है, जैसे I said, इनकी ग्रोथ में, इवन दैट वन आल्सो, लक्ष्मी आल्सो, और भी है लोग, उनकी ग्रोथ में जो हिंड्रेंसेस है वो बड़े. आमेन. नाइट एंड डे, एंड दैट व्हाट्स द जॉय दैट गिव्स यू, नो, आपकी ग्रोथ में हम सबकी हमारी जिंदगियां बनती है. आमेन. नंदा आई आफ्टर सम टाइम, गॉड ब्लेस हर. नाउ मे आवर गॉड एंड फादर गाइड अस स्टेप्स टू. ये हर मोड़ पे, हर जितनी भी ग्रोथ है, शैतान प्रभु की हर काम में और बढ़ने के लिए शैतान वहां रुकावट लेके आएगा. It's a done thing, and we have to overcome it. That's just overcome. What are we overcoming? This enemy. Amen. So, आप जो भी तकलीफ दुख देख रहा है, it's for a time, but I say जो those are faithful go to the next level. Amen. Read 13. ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष है. Yes, that he may strengthen and confirm, establish your hearts faultlessly pure and unbelievable holiness in the sight of God our Father, at the coming of our Lord with all his saints, the holy glorified. Amen. So he'll confirm. तो ये कितनी चीजें प्रभु कर रहा है, वो कंफर्म कर रहा है, स्ट्रेंथन कर, कंफर्म, एस्टैब्लिश. आमेन. दैट जब आप श्रद्धा से उनके पीछे जा रहे हो, तो आपको शक्ति देता है, आपको कंफर्म करता है और आपको स्थापित करता है. Faithlessly pure and unbelievable. जब आप उसके पीछे आता है, तो God is doing his work. He confirms, establish and faultlessly. Amen. जब प्रभु आप प्रभु का काम नाडर और निडर करते हैं, तो कोई भी आपको दोष नहीं दे सकता है. You are saved by your passion for Christ. Amen. And to see, गलतियां हम सब करते हैं. I'll teach you something very great in God, something hidden in Christ. Perfect love casts out all fear, and love covers all sins. अगर आप सच्चे दिल को प्रभु को प्यार करते हैं, उसके राज्य का काम करते हैं, आप उसके बाद ढोंगीपन नहीं करते हो, प्रभु उनके राज्य को पहले उत्तम स्थान देते हो, एंड यू आर ऑलवेज देयर बिल्डिंग गॉड्स किंगडम. आप में जितनी कमियां है ना, आप में जितनी भी गलतियां है ना, प्रभु वो नजरअंदाज करता है, नजरअंदाज करता है. दैट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक, बट द लॉर्ड टोल्ड मी दिस. He overlooks the. He says, perfect day, love covers all sins. Amen. That doesn't mean you stay in them, but he gives you grace to overcome that. As long as you're focused on that much, he has a passion for people who have a passion for him. Because he's all about souls. उनका दिल कहाँ है? कलीसिया में, उनकी दुल्हन में, उनका बेटे के शरीर में, और किसी भी तरह रुए बच्चे. नंदा को बहुत तरह गिफ्टिंग है रुए बचना. दीपा या बेटी है, by God's grace, come back to your calling. जो भी हिंड्रेंस है उखाड़ दो, दूसरे को बचाना. Amen. And that is not a small thing. आज जो इस सबसे ऊंचा काम आप कर रहे हो, आप हम लोग सब, we are women, most of us here, of course we are all multitaskers. Yes, of course, we have one handsome young man here, but we say we multitask,
हमको घर का काम, बाहर का काम, या गिफ्टेड, या लाइक द होली स्पिरिट, या हेल्प नीड्स, व्हाटएवर, वो सब प्रभु बहुत खुश है हर काम के। लेकिन सबसे ऊंचा खुशी, सब द डीपेस्ट जॉय दैट एवरी वुमन ही हैज, अ वुमन हु ट्रूली लव्स द लॉर्ड, आमेन, जो उसका काम में करता है, इज सो प्रेशियस टू गॉड। Proverbs 31, आमेन, जो प्रभु का काम, बाकी सब काम सही है और करना भी चाहिए, बट उन्होंने मिरियम और मैरी को क्या कहा? मिरियम को think over it, जो उनके बहुत प्यारे परिवार के साथ खाना खाने के आया, तो मार्ता क्या करी? उन्होंने जाके देखा कि मैरी मिरियम को इतना मोहब्बत क्या था प्रभु से, और उनके वचन वो सिखा रहा था, उसके कदमों में बैठ के शी वॉज जस्ट ड्रिंकिंग इन, वो पी रहा था, वॉज हंड्रिंग, ताकि प्रभु का घर का काम सब निग्लेक्ट किया, तो उसकी बहन आके चुगली लगाता है उसको, प्रभु को, कि जाके आके बोलो कि मैं अकेली इधर कर सब कुछ करते, लेकिन वो आपके पास है, मेरे को मदद चाहिए किचन में। तो प्रभु ने क्या कहा? दैट माता माता यू हैव मेनी वरीज, तुमको बहुत सारी चिंता है, आमेन, बट इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग जो गलत कर रहे हैं, हमको खाना बनाना है, परोसना, सब कुछ करना है, मगर he says she has chosen the better part, amen, he has chosen the better part. What has she given glory? For the word of God, amen. तो मतलब वो जानते थे कि वो आ रहे थे, अगर वो श्रद्धा इतना थी तो पहले से सब तैयार करता हूँ, राइट, लेकिन उन्होंने बोला जो सैक्रिफाइस करके, उनको पता था कि उसकी बहनों की वो होगी, और मतलब लड़ाई होगी मीरा नंदा के बारे में कंप्लेन करेंगे नंदा पर रोड में, लेकिन वो क्या बोला? इट्स ओके, दोज आर चोजन द वर्ड ऑफ गॉड, जो प्रभु के वचन को उत्तम स्थान दिया, हालांकि इट वाज नॉट, द मील वाज नॉट परफेक्ट, द हाउस वाज नॉट परफेक्ट, बट ही सेज दैट इज सो द बेटर पार्ट, मैन, सो डोंट हिंडर हर वर्क, मैन। प्रभु कितना मायना रखता है कि जो औरत प्रभु के वचन और उनको काम को उत्तम स्थान देता है। ऑफ कोर्स द अदर थिंग्स आर नेसेसरी, everything is necessary, but okay, there's a priority, especially women, amen, worshipper, amen, women are, they have, मैंने हमेशा कहा है कि हर कलीसिया में सबसे ज्यादा all over the world maximum congregation women है, amen, so women are very precious to God, in fact 70%, amen, क्योंकि उनको बनाया है प्रभु यीशु के लिए, उनकी इमोशंस, उनकी साइक, उनकी स्पिरिट, मल्टीटास्किंग, काउंसलिंग, सब कुछ है। इसलिए शैतान की सबसे बड़ी नजर है विमेन को, कि विमेन द हाउस, द वाइज वन बिल्ड्स अ होम, ताकि विमेन अगर पीछे हटे और कोई दिक्कत आई तो कि सबकी, वो वाइज वुमन बिल्ड्स अ होम, जितने भी गलत और जितने भी सही आपका हस्बैंड्स हो या फादर्स हो, एक बुद्धिमान औरत अपना घर बांधता है, कोई मर्द नहीं, आमेन, दैट्स हिज कॉलिंग, आमेन, और एक बेवकूफ औरत अपने हाथों से ये तोड़ता है। every power, every privilege comes with a great responsibility, amen. So I believe women are made for the word of God, so it is something very natural to them, amen. God, yeah, we beg and admonish you, just read what's up. Yes, I think we'll do the next day of the Lord next time, and oh yeah, one second, what's the time? Where is my phone? Yeah, okay. No, I'll do the next chapter as well. Furthermore, brethren, we beg and admonish you that you follow and learn from us on how to walk as to please. देखो पहले पढ़ो कि he is again coming back to the walk with the Lord. Amen. आप पढ़िए first one. निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और बढ़ते जाओ। Amen. जैसे चलते आगे बढ़िए। Again it comes to purifying the character, because शैतान बैठा है वो हिंडर करने और उसको थ्वाट करने और हिंड्रेंस और ऑब्स्टिकल नहीं कहना। And what charges? या आगे बढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई हैं। Amen. This is our third one. Amen. ये हाईएस्ट विल है। हम सोचते कि प्रभु का विल क्या है हमारे लिए, मुझे नहीं पता। प्रभु का विल आपके लिए ये है। Amen. अब थर्ड पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। Amen. व्यभिचार से बचे रहो। हम सबको पवित्रता में प्रभु बुलाए। Amen. पवित्रता नंबर 1 with thanksgiving. Amen. तो कोई भी एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में थर्ड पार्टी या किसी और के साथ रिश्ता है वो गलत है। शादी से पहले कोई
लड़का या लड़की रिश्ता रखता है, वो फिजिकल रिश्ता, वो गलत है. It is a impurity. This is number one, and the other one is thanksgiving. That each of you, आगे पढ़िए. और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाए. पवित्रता, amen. All this पवित्रता हम कैसे करते हैं? जब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं. इसीलिए दाऊद राजा ने कहा, I've hidden the word of God in my heart. प्रभु का वचन मैंने सीने में छुपा दिया कि मैं तुम्हारे पाप न करूं. Yes. 5-6. और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती. Amen. And 6. Yeah. कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दावा चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हम पहले हमने तुमसे कहा और तुम्हें चिताया भी. Amen. And whoever has called us to impurity but to consecration, amen, तो पवित्र, we are set apart. हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया जैसे नहीं चलते हैं. हमको सर्टन प्रोग्राम्स नहीं दिखता है. जब यीशु के साथ चलता है, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है, तो हमारे अंदर वो घंटी बजती है, चेतावनी आती है, समथिंग इज नॉट राइट. ये नहीं देखना चाहिए, ये सुनना नहीं चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, उस बीच में उठ के आना चाहिए. दीज आर द थिंग्स. ये होलीनेस नहीं कि सफेद कपड़े पहन को एक अपने आप माला जपो, अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए मैं कितना पवित्र हूँ. जितना मैंने बोला है कि सफेद कपड़े इज वेरी नाइस, लुक्स वेरी नाइस पीपल, बट ज्यादातर लोग रिलीजियोसिटी में सफेद कपड़े पे, नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन प्रभु ने एक बहुत ही बड़ी चीज बोली, व्हाइट वॉश. तो ढोंगीपन को व्हाइट वॉश टूम्स, कपड़े जो अगर सफेद कपड़े में पहनते, उनकी फैरिसी सफेद कपड़े पहनते थे तो पहनते थे, लेकिन there's nothing wrong with that, it's a beautiful color. लेकिन हमारा दिल अगर सफेद नहीं है, so वो it is just ढोंगीपन. हम तो लाइट वर्ड्स यूज करते हैं. प्रभु ने क्या कहा? तुम डेड मैन्स बोन्स, तुम कवर हो. तुम सफेद पहन के, अगर तुम्हारे अंदर विकेडनेस है और गलत है, तो तुम कबर हो और मरी हुई हड्डियों से तुम सड़ रहा है. God used very strong words which is not preached, but it has to be taught. Amen. मरी हुई हड्डियों से भरे हुए. Amen. Therefore, whoever disregards, कोई भी, whoever disregards and rejects this, disregards not man but God, whose spirit whom he gives you to be holy, chaste and pure. तो ये वे विचार हमें आपको पवित्र करना है, गलत साइट्स पे जाना नहीं है. यंग लोगों को there's no mincing words, no negotiating these things. प्रभु बोलता है कि दो जानते हुए प्रभु का वचन को मायने नहीं रखता है, वो गलत करता है. Amen. 9. किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा. Amen. 11. और सारे मकीदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो. पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते चलो. Amen. To make it your ambition to endeavor to live quietly and peacefully. आप दूसरों के, don't be a busybody. दूसरों की जिंदगी में क्या कर रहा है, जांचना नहीं करना चाहिए. Amen. जो उधर वो क्या कर रही है, वो इधर जा रही है, उसके घर में कौन आया नहीं किया, नो, वो busybody, वो हमारे लिए गलत है. वो to live quiet lives, to live quiet life, that it is mind your own business, खुद की बिजनेस. आपकी जिंदगी का तरक आपके नेबर में की जिंदगी में उधर कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको कोई बिजनेस नहीं. ये प्रभु का वचन लिखा है. Amen. अगर कलीसिया के अंदर भी आप किसी के लिए आप बोलते, आप किसी के साथ या किसी के बारे में आप गलत सोचते हो या गॉसिप करते हो कि इसने ऐसा कहा, इसने कहा, इसके घर में ये आता वो आता है, गॉसिप वो प्रभु के सामने बहुत बड़ी गलत है. सारी दुनिया करती है और सारी दुनिया ये चीजों को बहुत नॉर्मल समझता है, लेकिन दुनिया का नॉर्मल और हमारा नॉर्मल बहुत अलग है. Amen. What is considered normal? एक लेडी मुझे बहुत साल पहले बोले थे, but you know pastor, that is I only have white gossip. Now what is white and green and technical gossip? मैं ज्यादा बुरा नहीं बोलती हूँ, थोड़ा मजा आता है ना, तो इसी को ऐसा ताना मार के ये करके वो ताना मार दो, वो थोड़ा तो मजा लेता है. So boring, ऐसे तो boring. We don't gossip. She was very fond of kitty parties. At least she was honest to tell me that. मैं तो प्रभु बोलता है ये मजा आना, हाँ वो मजा आता है जब आपको प्रभु का आपका झटका आएगा, फिर मजा चला जाएगा. That's very wrong. Look, mind your own business
and to work with your hands. कोई भी आलसी नहीं रहना चाहिए प्रभु के किंगडम में. प्रभु बोलता है जो जो काम नहीं करता वो खाना नहीं खाना चाहिए. Amen. Read this, to work with your hands and as we charged you, so that you bear yourself. ताकि that 12 and 13. कि बाहर वालों See, के जो busy रहते हैं ना, say idle minds a devil's workshop. जो मन खाली रहता है सारा नेगेटिव उधर ही आता है. It's a grace of God. I always ask Lord, I want to work the last day. कि प्रभु में कोई रिटायरमेंट नहीं है. रिटायरमेंट इज नॉट अ बिब्लिकल कॉन्सेप्ट. प्रभु 120 प्रभु के बंदे बहुत लंबी उम्र जिए, बहुत हेल्दी जिए और प्रभु का काम whatever work they were assigned to till the last day they died. There is no retirement, there is no old age. क्या anybody can show me in the entire Bible कि old age में कोई retire किया? ये सब दुनिया की चालाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं हमको कोल्ड करने के लिए. Amen. To take you away from God's calling. I know preachers who are preaching from 95, 97, 98. Amen. क्योंकि प्रभु कहता है तेरी जवानी को मैं वापस लेके आऊंगी. I will renew your youth. I'll give you health. I'll give you long life. I have the best possible plans and purpose for your life. मेरी उद्देश्य तेरे जिंदगी के लिए बहुत ही भला है, बहुत ही बड़ा है. तुझे कोई भी हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, तुझे उन्नति और बरकत के लिए. हाँ मुश्किलें आएंगे लेकिन वो पार करेंगे as long as you hold it. There is no old age, no sickness, nothing. And will prosper you. Amen. I'll end it here and let King over it here. We'll do the next half of it next time. How we have to see how simple things. हमको what is it? हमको मेहनत करना है, प्रभु का काम करना है, and दूसरों की जिंदगी में झांक के नहीं देखता है. Mind your own business, don't interfere others, और मेहनत करना है. Amen. Mind your own business, and so that we are blessed. प्रभु बोलता है busy bodies, so there's a trouble coming to busy bodies. Amen. So अगर ये ओवरकम करना है और प्रभु बोलता है कि बहुत लंबी उम्र and there is no retirement, everything जैसे as we grow older, I believe the Lord will renew our strength even more. They that wait upon the Lord should renew their strength. हाँ छोटी मोटी बीमारियां आएंगे, whatever मुश्किलें आएंगे, but we will overcome as long as we focus on the Lord. We pray for each other. क्योंकि प्रभु की हर प्लान हमारे लिए भला है. There is no old age, no retirement, no gossip, no laziness in God's kingdom. Amen. All have to work hard. It's such a blessing to work hard. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And प्रार्थना करते, bless today's word in a mighty way. And I pray, Father Lord, that it be health and strength to all our people. And I pray, Father Lord, that सबको bless कीजिए in a mighty way. जो वचन के ऊपर वो बहुत ही, and I claim this word is coming for each one of you. I have the best possible plans. Yes, I'm feeling it in my spirit. जो भी आज अटेंड किया, आज की सर्विस is coming to me again and again in my spirit. जो आज का वर्ड अटेंड किया, online or sitting in this room, this is the promise for you today after hearing the whole word. I have the best possible plans and purpose for you. मैं तेरी जिंदगी के लिए बहुत ही भला और परिपूर्ण उद्देश्य आपके लिए, तुझे बरकत देने के लिए, उन्नति देने के लिए और कोई भी हानि पहुंचाने के लिए नहीं. Wow, what a word, man. What a word. And I'm feeling the presence of the Holy Spirit. उत्साह देने के लिए. Thank you, Lord. You are such a loving and a great precious God. I claim that word for myself too, Lord. For my family too, Lord. To give us hope, prosperity, and a great future. And the conditions we just learned. When we walk, when हमारी जिंदगी fall in line with His plans and His purposes and not our plans and purpose for life. Bless our precious people, Father Lord. Let them increase in the word of God, increase in the knowledge of the word, increase in the strength of the word, and your spirit will guide and guard them. Let their lives be filled with the presence and the miracles of God. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर कोई वो सोल सेवर राज्य बांधे, दूसरों को गॉस्पेल शेयर करे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे, आपके राज्य के काम में इतनी दिलचस्पी से आप मोह के साथ करेंगे. The fire will come and burn the dross, Father. गुनगुनापन से निकल के प्रभु, क्योंकि तूने इतना ब्यूटीफुल स्पिरिट मेरे स्पिरिट के अंदर आपने ये लफ्ज डाला आपके लिए. You have got the best possible plans. When we fall in line with your plans and purpose, की हर चीज सुबह उठ के चौकड़ी मार के सबसे उत्तम स्थान आपको प्रभु को देना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, and हर चीज प्रभु की कवरिंग से करना है. If you are confused in some year, that He will guide you, can take the pastor's covering. And when we are under that covering, there's only goodness coming from there. Amen. Though there will be ups and downs, that's okay. In this life, you will have problems, but don't worry, I have overcome the world. He's such a wonderful God. How clearly I heard this verse. I have the best possible plans. When I think of it also, I'm getting goose flesh.
I claim it, Lord, for myself, for Pastor Paramjeet and Angat Abhisha. Claim it for your children too. All of them. Thank you, Lord. Amen. God bless you. I can send forth the prayer request. Yes, Khatun auntie, pray for the family. Amen. I pray for Elements to get healed. what? Aiman. Elements to get healed. Elements. Elements, yes, and family. Healed. Lord, we pray for Khatun, Father Lord. She's a senior person. I thank you, Lord. बहुत सालों से हमारे साथ थे और आज भी है. बहुत बड़ी miracles through इन्होंने receive किया when Pastor Babu has prayed for her and you have prayed for her huge miracles. I thank for each and every miracles. आज यहाँ तक लेके आए. मिरियम के लिए, मुस्तफा के लिए, उनकी salvation के लिए, उनके सारे grandchildren wherever they are, तेरा पवित्र हाथ उनके ऊपर हो प्रभु. Let the wind blow in a mighty way and uproot everything in their lives that is not from you. Make each one of them a solid disciple of Christ. खातून को गुड हेल्थ दीजिए प्रभु. डॉक्टर रियाना का, उनको भाई को और उनके लेग ना जो भी हिंड्रेंस है प्रभु. As I just said, no old age, no bad health. Not one in Power of Love will see a old age bed. कोई भी ज्यादा देर तक बेड पे नहीं होगा प्रभु. At this time, Father, perfect good health for she will restore back to your work because you have the best possible plans. ये नहीं लिखा है कि खाली young लोगों के है या 40 तक है, 50 तक है, 60 तक. It's a lifelong as long as you're on planet Earth. It's this time I give Karishma into your hands. Whatever that I taught her on Tuesday will imbibe and internalize in her spirit. जो भी hindrance है उसकी healing से उखाड़ दीजिए प्रभु. Fill her life, fill her spirit with your love, fill her with a great passion for God's word. Make yourself real to her, Father. जो भी hindrance है प्रभु. काफी टाइम उन लोग ने जाके worship किया प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. हर शैतानी ताकत जो lack of faith है या lack of love है जो भी है उखाड़ दीजिए प्रभु. Let her spirit come alive. Let Christ be revealed to her. And as she hears those audios, I pray, Father, I speak perfect healing, Father. I rebuke that autoimmune disorder. I take it the cross and cancel it. And I pray perfect swallowing. Her saliva will not thicken. Perfect breathing. Her lungs will not thicken. Perfect digestion. No unnecessary procedures. No unnecessary tests, Lord. खुदा कर लहू से ढकती है. And I pray salvation in all its fullness and both her children and peace and healing. Cause her to read you. Cause her to hear your word. Cause her to have that faith that is alive. Cause her, Father, to sit at your feet. And I pray your presence will reveal to her. And we pray, Lord, that complete healing will start taking place. All our dear people are praying for her. I encourage them that complete healing will flow through, that no one will remain sick. In Jesus' name we pray. Vijay Kumar, please pray for his wife has written and please pray for Bajoria's IPP. High BP. विजय कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु. उनकी वाइफ आई थिंक इज गॉट पाइल्स ना. यस. जो भी उनकी एलिमेंट्स है प्रभु हील कीजिए प्रभु. पूरी तरह चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. एंड बिजनेस यू सेड ना. Business and his brother's BP से उनकी BP है. हाइपरटेंशन प्रभु उनकी भाई की वो बीपी को बिल्कुल ठीक कर दो प्रभु. और तेरी हवा बहुत तेजी से चलने दो उस घर में. जो भी अड़चन है प्रभु निकाल दो प्रभु. Many of our lives the wind is going to blow. I pray, Father Lord. और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू. Then Lucky, please pray for family. Huh? Lucky, please pray for family. I pray, Father Lord, dear the little one रागिनी को प्रभु अभिषेक कीजिए प्रभु. वो बच्ची चुनी हुई है प्रभु. जो भी शैतान झूठ बोल रहा है उनके दिल के अंदर उखाड़ दो प्रभु. वो अच्छी तरह पढ़ेगी, प्यार मोहब्बत से रहेगी. और हम प्रार्थना करते हैं परिवार पूरा को ब्लेस कीजिए. और लक्ष्मी पूरा परिवार को अपने बच्चों के लेके रोज सुबह शाम प्रार्थना करेगी प्रभु. और तेरी हवा बहुत तेजी से चलने दो प्रभु. और जो जरूरत है सारी पूरा कीजिए प्रभु. धन्यवाद यीशु. Then Harsha Kamath, please pray for a job. Many disturbances are coming and mind is also disturbed. You can see. Harsha Kamath. Harsha. Oh, sorry. Pray for dear Harsha, Lord. I pray, Father Lord, as Harsha keep reading the word of God. Somebody keep send her the scriptures. Amen. Prosperity and healing. वचन पढ़िए और हम प्रार्थना करते हैं. हम pray the mind of Christ. It's a process walking with you. सही जॉब दीजिए प्रभु. सही जॉब at the सही टाइम. बच्चे बहुत ही अच्छा बच्चा है उसका प्रभु. सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु. अब वो भी प्रभु को जाने. And release the right job for her and Ritu too, Father Lord. As they grow. Maybe you keep some people at home for they have to grow in the Lord and the word. ये जॉब मिलेगा तो टाइम नहीं मिलेगा. Make every provision for Harsha, Father Lord. Have the right friends and for Ritu too. In Jesus' name. Then Sita auntie, please pray for the redevelopment of the house in In June. 2 years. हम प्रार्थना करते हैं. बहुत सालों से वो stuck है प्रभु. Let's all of us agree. बहुत सालों से she's gone very far end of थाना. और हम प्रार्थना करते हैं जो आप जानते हैं ना वो सर्कल के सामने ही है उसका घर. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु redevelopment. I rebuke every power of the enemy. The liar, deceiver, devourer. जो भी अड़चन है प्रभु खाड़ दो प्रभु. All of us agree, Father, that
that the redevelopment will start very soon. And I pray, Father, mighty things will happen. And I pray that everybody will get their own house. जो दूर गए पास गए, जो खोए हुए इस दुनिया में वापस आए प्रभु, जो हमारे लोग हैं प्रभु, जो ठंडे हो गए, गुनगुना हो गए, तेरी हवा तेजी से वापस लेके आएंगे प्रभु, उनका कोई नाश ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। हम सब प्रार्थना करते हैं, ब्रिंग द लॉस्ट शीप बैक फादर लॉर्ड, एंड सबका खुद का घर है प्रभु, those who are paying their tithes and offerings, Father, they will not lack, Father Lord. I pray own house. Jaldi say, Father, within 225, they will have their own house. I declare it, I speak it, and I receive it, and I confess it for each one of them. In Jesus' name. And Asha auntie for family celebration. Yeah. I pray, Father, for Asha, Father Lord, that her husband, I pray for Mitali, I pray for Rohan, Father, wherever they are, touch them, let the wind blow over them and reveal Christ to them, Father Lord. That Asha is also praying, bless her, encourage her, Father. All the people are praying for their family salvation. तेरी हवा प्रभु वहां तेजी से चलने दो प्रभु, और हम प्रार्थना, रिवील क्राइस्ट लॉर्ड, एक सब बच्चे प्रभु, कोई भी नाश ना हो प्रभु, तू रिवील क्राइस्ट टू एवरी वन ऑफ देम, सारे प्रभु, हमारे बच्चों को, हमारे husbands, wives, fathers, mothers, let Christ come to each one of our people's salvation. Then Roma auntie, please pray for husband Keshav Pujari. He searches for God and for presence and for I pray, peace. yes, I pray for Keshav Pujari, Father, keep him away from wrong company, Father Lord. खुदा का डर डाल दीजिए इस इंसान के अंदर, quicken his spirit, Lord, a hunger for God, a thirst for God. Lord, you always hear the wife's prayers, Father Lord. I pray, your word says, Lord, जो भी शैतानी ताकत उस घर के अंदर है, जो अलग किया है, जो दीवारें खड़ी है प्रभु, उखाड़ दो यीशु मसीह के नाम से. Let Christ be revealed to him and let bring love and unity between them, and may he be saved in Jesus' name. Amen. Then Bhavana auntie, please for the salvation of Shubham and godly wisdom for her and business. I pray, Father Lord, शुभम की salvation प्रभु, बहुत अच्छा बच्चा है प्रभु, अंडरस्टैंडिंग बच्चा है, लहू से ढक दो प्रभु, and your time reveal Christ to him, brother, to him, Father Lord. उसके बिजनेस को हर तरह की उन्नति दीजिए प्रभु, she is a kingdom builder, and I pray, Father Lord, कि उसको wisdom दीजिए प्रभु, बहुत सारा wisdom for all the new thing, and to grow in the Lord, grow in worship, and to go and to grow in faith, and may she save many souls. कल word भी आया था पास्टर को कि भिवंडी के लिए सोचिए. Amen. Congratulations. I was so thrilled after a long time. भिवंडी के लिए सोचिए. So go ahead, Bhavna. God is with you. The wind will blow and do the Lord's work. Amen. What's greater than Lord's work here? भिवंडी के मीटिंग के लिए सोचिए. अरे लघु से ढको, पीछे पीछे साए की तरह आपकी बरकतें आएंगी. धन्यवाद यीशु. Then Rakesh, please pray for him and wife and children and family salvation and business. हम प्रार्थना करते हैं उसके बिजनेस बहुत अच्छी तरह फले प्रभु. राकेश को स्थिर मन दीजिए प्रभु, आप काम दीजिए प्रभु, जो आपसे नहीं है उसके मन से निकले प्रभु. 10वां भेज दीजिए प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं जो उन्होंने मोदी कैब में किया प्रभु, वो बिजनेस में बढ़े प्रभु, और दूसरों को लेके आए प्रभु, क्योंकि वो इट्स अ होली थिंग व्हेन यू आर वर्किंग फॉर वो, जो प्रभु ने हमको दिया वो जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह ली है प्रभु. और हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी वाइफ इज ललिता, सरिता को ब्लेस कीजिए प्रभु, बहुत अच्छी लड़की है, और बच्चों, चारों बच्चों को लहू से ढकिए प्रभु, वो वचन में बड़े और प्रार्थना करे, और तो उस घर में शांति आने दो प्रभु. धन्यवाद यीशु. वेरी नाइस गर्ल. Okay, thank you, Lord, for all our precious people who help me. Bless all the people on FB, wherever you are, whoever you are. God bless each one of you. Whoever's watched today, the word for you is, I have the best possible plans and purpose for your life. To give you hope, उत्साह देने के लिए, to give you hope, a future, बहुत ही अच्छा future देने के लिए, and to give you prosperity and not cause any harm. The fullness of life in that. Amen. जब फ्यूचर देता है तो बुढ़ापे, उसमें अच्छा फ्यूचर है, उसमें बुढ़ापा नहीं है, धुतलापन नहीं है, कमजोरियां नहीं है, और कोई बीमारियां नहीं है. आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. God's people are meant to rock, rule and reign. All of you are called to be rock stars for Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless them. A wonderful meeting ahead, and join us. Amen. God bless each one of you. कल देश की प्रार्थना करो. Crucial time for our government की प्रभु, don't tell God how to do his job. प्रभु का राज्य आए और प्रभु का किंगडम आए, और पूरे the cabinet, our PM, everybody know the Lord, और उनकी इच्छा से हर कुछ चले. बाकी पॉइंट्स हमारे they will send it to you जो करता है. और Sunday we'll be joining online because hall was not available, but we'll be joining online and start with tomorrow and start spending that quiet time with the Lord. And God says, I have the best possible plans and purposes for your life. To give you hope in the future, to prosper, उन्नति और बरकत देने के लिए, उत्साह देने के लिए, और कोई भी हानि पहुंचाने के लिए. What a wonderful verse. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. God bless each one of you.
Thank you, I love you Pastor Ji. guys. Jesus bless you. Thank you, Pastor. Praise the Lord.